Good afternoon, everyone. We will be doing this sum now. Mr. Shashi brought a refrigerator under hire purchase system for a cash price of rupees 15,675. So Mr. Shashi, who is he? Mr. Shashi is the buyer. Buyer means hirer, and he bought the fridge for rupees 15,675. He paid rupees 4,500 on signing the agreement. This 4,500 is the down payment. Then balance amount of 15,675 will be paid in 3 equal installments of rupees 4,500 at the end of each year. Now tell me, 4,500 plus 3 installments of 4,500. When we add all the 4,500, we get 18,000. जब हम 4 बार 4,500 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 18,000. बट द प्राइस ऑफ द refrigerator is 15,675, but we are paying 18,000. We are paying more than the amount of the fridge. So this extra what we are paying, can anyone tell me what is that extra amount that we are paying? What is that extra amount that we are paying? What is the extra amount that we are paying? It is, yes, it is 2325, and it is known as the interest. That 2325 is the interest. And now after that, what is given? After that, they have given the rate of interest charged for the hire purchase is 10% per annum. The rate of interest is 10% per annum. मतलब जो ये 2325 का इंटरेस्ट है वो एनुअली पे कर रहे हैं हम. तो जो रेट चार्ज किया है it is 10%, and we have to calculate the installment interest and also depreciation at 10%, and the written down value method, which is also called reducing balance method or diminishing balance method. We have already calculated the interest in the last sum. We have already calculated. So this statement is known as calculation of interest and depreciation. Now what we have to now solve is the journal entries. So journal entries in the books of two people. One is the hirer, whose name is Shashi. He is who? He is the hirer. Hirer means the buyer. And in the books of vendor. अब vendor का नाम तो दिया नहीं है. Vendor means seller, but seller का name is not given in the question. So seller के उसके नेम के जगह पे हमें वेंडर लिखना पड़ेगा, because only Shashi's name is given, only buyer's name is given. Who is the seller? His name is not given, so we have to show as vendor only because we don't know the name. Now let us prepare the columns for the journal entry. 3 columns, जिसमें से first one will be for serial number as date is not given. Next one will be in the books of Shashi. Shashi is the hirer, or you may say buyer. And second wala in the books of vendor. Vendor name is not given. Now with this information, we will start with the sum.
date is not given, so we will put the serial number. Date निकाल के I will show here as serial number, because now the first entry, ये हायर परचेज का सारा जो ये तो प्रोसीजर है, ये स्टार्ट होता है विद परचेज एंड सेल. व्हेन Shashi purchased a refrigerator from the vendor and vendor seller sold the refrigerator to him, this procedure of hire purchase started. So our first entry will be kya kharida, which is the asset that we purchased. Refrigerator was purchased, so refrigerator account debit. रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट कितना है, गिवन इन द क्वेश्चन 15,675. वेयर इज इट गिवन? रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट इज गिवन इन द फर्स्ट लाइन 15,675. तो दिस इज द कॉस्ट एंड असेट कम्स इन. एंड किससे खरीदा? From whom did we purchase? To vendor account. This will be the first entry. किससे खरीदा? वेंडर से खरीदा 15,675. और एंट्री का नरेशन रहेगा बीइंग asset purchased या रेफ्रिजरेटर परचेज्ड. ऑन व्हाट सिस्टम? परचेज्ड ऑन हायर परचेज बेसिस. लिखेंगे हायर purchase basis. This is our first entry. And in the books of vendor, ये वेंडर ने क्या किया? सेल किया. किसको सेल किया? उसका नाम क्या है? Who is the receiver? शशि has received. तो शशि का नाम लिखेंगे. और कितने अमाउंट का है? What is the amount? 15,675 to व्हाट इज दिस? ये तो वेंडर सेलर तो रोज दिन में 10 बार फ्रिज सेल करता होगा, तो उसके लिए ये असेट नहीं है. इट इज अ सेल ऑफ असेट. इट इज सेल ऑफ स्टॉक, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ कमोडिटी. तो बीइंग व्हाट हैपेंड? बीइंग गुड्स सोल्ड, या क्या नाम लिखा है वो भी लिख सकते. बीइंग रेफ्रिजरेटर सोल्ड on what basis? Higher purchase basis. With this our first entry is done. Now second entry में जिस दिन रेफ्रिजरेटर परचेस हुआ उसी दिन कितना पैसा बाहर गए? एग्जैक्टली डाउन पेमेंट 4,500 है. तो डाउन पेमेंट के टाइम पे शशि किसको पैसा देगा? वेंडर को, बिकॉज वेंडर का नाम नहीं दिया है. और व्हाट विल गो आउट? कैश विल गो आउट. सो टू कैश बैंक. यू शुड अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर. पहले परचेज सेल का एंट्री, फिर डाउन पेमेंट का एंट्री. बीइंग डाउन पेमेंट made. This will be down payment made. Being down payment made. And in the books of vendor क्या होगा? उसको पैसा मिलेगा, वेंडर को पैसा मिलेगा. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट. कितना पैसा मिलेगा? 4,500. कौन पे करेगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु विल पे? शशि अकाउंट. ये रहेगा 4,500. इसको बोलेंगे बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड. तो इसके बाद ये स्टेप के बाद डाउन पेमेंट भी मिल गया, रेफ्रिजरेटर घर लेके जाने को मिल गया. वंस व्हेन यू pay the down payment, you are allowed to take the product to your house. Now आपको वेंडर का याद और वेंडर को हायरर का याद
कौन से सिचुएशन में आएगा? एग्जैक्टली करेक्ट, इंटरेस्ट के टाइम पे। मींस पहला एंट्री परचेज सेल का, दूसरा एंट्री डाउन पेमेंट का। ये दोनों एंट्री एक ही बार आता है, बिकॉज परचेज भी एक ही बार होता है और फर्स्ट पेमेंट भी एक ही बार होता है। उसके बाद डायरेक्टली इंटरेस्ट। नाउ टेल मी, इंटरेस्ट जब पे करेंगे तो इंटरेस्ट शशि के लिए एक्सपेंस है और हम बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो इंटरेस्ट को डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का अमाउंट है 1118, 3 बार 1 एंड 8, 1118। दिस इज द इंटरेस्ट। और ये किसको पे करना है? व्हाट इज द नेम? वेंडर को पे करना है, तो वेंडर अकाउंट कर दिया। वेंडर अकाउंट किसको पे करना है? वेंडर को। और इसका नरेशन रहेगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। दिस इज द एंट्री। नाउ जब हम वेंडर के बुक में जाएंगे तो कौन पे करेगा? हु विल पे द इंटरेस्ट? शशि। एंड व्हाट इज द अमाउंट? 1118। एंड ये जो इंटरेस्ट है ये तो इनकम है वेंडर के लिए, बिकॉज ये वेटिंग चार्ज है, इतना टाइम रुका करके ये मिलेगा। तो व्हाट इज द अमाउंट? 1118। इसका नरेशन बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, इसको बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। नरेशन विल रिमेन द सेम। नाउ नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट के बाद ही डाउन पेमेंट। किसको पे करना है डाउन पेमेंट? अब वेंडर का पैसा, वेंडर को पैसा मिलेगा, पर हायरर का क्या होगा? हायरर का पैसा तो बाहर जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट? 4500। और इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जस्ट सी अबाउ, अगर इफ यू हैव नॉट सीन, जस्ट सी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है? 4500। सो हम क्या करेंगे, क्या इंस्टॉलमेंट जब हायरर शशि पैसा देगा इंस्टॉलमेंट का तो उसका कैश बाहर जाएगा, तो किसको पैसा देगा? वेंडर को। और पैसा देगा तो पैसा बाहर गया, इसको बोलेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट पेड, इसको बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट पेड विद इंटरेस्ट, क्योंकि दो चीज दे रहे, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। सो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो सिर्फ बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड बोलेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट वन, वेंडर को क्या मिलेगा इंस्टॉलमेंट के टाइम? इंस्टॉलमेंट मिलेगा मतलब वेंडर को कैश मिलेगा। वेंडर को क्या मिलेगा? कैश। अमाउंट क्या है? 4500। और यहाँ लिखेंगे हु इज द गिवर? टू शशि अकाउंट, टू शशि अकाउंट 4500। इधर लिखेंगे 4500 बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है, मतलब फ्रिज का पैसा भी मिला है एंड साथ में इंटरेस्ट भी मिला है। तो इसके बाद कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? Next entry, exactly correct, depreciation. So depreciation is a loss. So debit all expenses and losses. Debit all expenses and losses. तो इधर लिखेंगे depreciation account debit. कितना depreciation है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 1568। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया depreciation 1568। टू किसका वैल्यू कम होता है? रेफ्रिजरेटर का वैल्यू कम हुआ ना, जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो रेफ्रिजरेटर का वैल्यू कम हुआ, रेफ्रिजरेटर का वैल्यू कम हुआ। तो रेफ्रिजरेटर का कितना वैल्यू कम हुआ? इट इज इक्वल टू जितना डेप्रिसिएशन हुआ। तो इधर लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। अब वेंडर के बुक में
एग्जैक्टली वेंडर तो रोज रेफ्रिजरेटर सेल करता है, तो उसके उसके बुक में कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता। जो यूज करेगा फ्रिज, उसका फ्रिज का वैल्यू कम होगा, और जो खरीद के बेचेगा उसका थोड़ी वैल्यू कम होगा, उसने यूज नहीं किया, तुरंत खरीदता है तुरंत बेचता है, मींस ही परचेसेस एंड दैट क्विकली सेल्स, सो देयर इज नो डिप्रिसिएशन। नाउ टेल मी, इसके बाद ट्रांसफर एंट्री है। क्या दो चीज ट्रांसफर करना, इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है एंड डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करना, और इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन दोनों किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दोनों किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दोनों आ जाएगा। टू what two things, what two things will come, to interest will also come and to depreciation will also come। मतलब यहाँ पे हमने देखा that interest डेबिट में था, अब उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, P&L अकाउंट में। तो डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट में लिखा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिखा क्रेडिट में, और डेप्रीसिएशन भी डेबिट में था, लॉस, इसको भी हमने क्रेडिट में लिखा। मतलब हमने क्या किया, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन दोनों को कैंसल कर दिया, और कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है 1118, और डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना है, डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 1568। अब ये दोनों को ऐड करो और देखो कितना आ रहा है, 1118 प्लस 1568 विल गिव मी 2686। तो इसको बोलेंगे बीइंग, इसको बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन ट्रांसफर्ड, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे फिर वेंडर के बुक में आएंगे, वेंडर में तो कोई डेप्रीसिएशन नहीं है पर इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट क्रेडिट में है, इसको कैंसल करेंगे, ये इंटरेस्ट क्रेडिट में है, इसको कैंसल करेंगे तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा 1118। और ये इंटरेस्ट वेंडर को मिला है, रिसीव्ड हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। तो इसका नरेशन रहेगा बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। सो फर्स्ट ईयर का एंट्रीज हो गया, फर्स्ट ईयर का एंट्रीज हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में फिर से हमें सेम एंट्रीज रिपीट करना है, लेकिन परचेज तो रेफ्रिजरेटर एक ही बार होगा, उसका पेमेंट अभी तक पूरा पे नहीं किया, डाउन पेमेंट इज द फर्स्ट पेमेंट, तो डाउन पेमेंट भी बार बार रिपीट नहीं होता, डाउन पेमेंट और परचेज सिर्फ एक बार एंट्री आती है। तो एंट्री नंबर 3 to 6 हमें फिर से रिपीट करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है 3 इंस्टॉलमेंट, क्वेश्चन में क्या बोला था, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 4500। अब एक इंस्टॉलमेंट हो गया, अब 2 और बाकी है। अब व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट है 779। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन एंट्री नंबर 3 क्या है, इंटरेस्ट, मतलब हमने अभी पिछले साल इंटरेस्ट पे किया, इंस्टॉलमेंट पे किया, अब फिर से हमें वही चीज करना है, फिर से हमें इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो डेबिट में है, अमाउंट क्या है 779 टू, यस किसको पे करना है इंटरेस्ट, टू वेंडर अकाउंट, लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट। इसका नरेशन रहेगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, क्योंकि ये इंटरेस्ट बायर के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का प्राइस भी पे करना और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी पे करना, क्योंकि हम सेलर को वेट करा रहे हैं, उसको एक ही बार में पैसा नहीं दिया, अब हम डिले करेंगे अपना पेमेंट तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब इन द बुक्स ऑफ वेंडर कौन पे करेगा, who will pay the interest, शशि, that is the buyer will pay, अमाउंट कितना है 779 टू, व्हाट इज दिस, दिस इज इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट इनकम है वेंडर के लिए, तो क्रेडिट में लिखा 779 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट
चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। तो इसके बाद ये एंट्री के बाद इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट एंट्री होता है इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट एंट्री होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट किसको मिलेगा, किसको पे करेंगे, वेंडर को। इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट 4500, 3 इंस्टॉलमेंट है तो सेकेंड है। अब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो व्हाट विल गो आउट, कैश बैंक अकाउंट, कैश विल गो आउट। तो इसको बोलेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, इसको बोलेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट लिखेंगे मत लिखेंगे एक ही बात है। अब वेंडर के बुक में जब इंस्टॉलमेंट पे करेगा बायर तो वेंडर को क्या मिलेगा, वो पैसा मिलेगा। इंस्टॉलमेंट का कितना इंस्टॉलमेंट है 4500 टू कौन, हु इज पेइंग द इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट पे करेगा उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि सेलर जो है 10 रेफ्रिजरेटर सेल करता है 10 लोगों को। तो अगर सिर्फ कैश बैंक लिखेंगे तो कैसे समझेगा किसने पैसा दिया, तो जिसने पैसा दिया उसका नाम लिखना भी इंपॉर्टेंट है। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, इसको इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रहा है। इसके बाद हम लोग फिर से कौन सा एंट्री पास करेंगे, आफ्टर रिसीविंग द इंस्टॉलमेंट ईयर एंड में डेप्रीसिएशन आएगा। डेप्रीसिएशन इज अ लॉस, सो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रीसिएशन का अमाउंट क्या है, लेट अस गो एंड चेक। डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर है 1411। तो इधर लिखेंगे डेप्रीसिएशन, क्योंकि ये रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, यहाँ पे डेप्रीसिएशन बार बार चेंज होता है। ये कैसे कैलकुलेट किया है, लास्ट लेक्चर हमने जो किया है उसका प्रीवियस लेक्चर का लिंक देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करके यूट्यूब में मिलेगा, तो तुमको पूरा पता चलेगा इंटरेस्ट भी कैसे निकालते, डेप्रीसिएशन भी कैसे निकालते। अब डेप्रीसिएशन, जब हम डेप्रीसिएशन निकालते हैं तो डेप्रीसिएशन इज अ लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। यस यस करेक्ट, डेप्रीसिएशन इज अ लॉस। तो डेप्रीसिएशन से किसका वैल्यू कम हो जाता है, रेफ्रिजरेटर का वैल्यू कम हो जाता है, असेट का वैल्यू कम हो जाता है। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट 1411, इसको बोलेंगे बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड। और वेंडर के बुक में वो कुछ यूज ही नहीं करता, वो खरीदता है फ्रिज और बेचता है, तो कोई डेप्रीसिएशन नहीं होगा। हमेशा ध्यान में रखना गुड्स में कभी डेप्रीसिएशन नहीं होता। आप अगर सेल करने के लिए कुछ खरीदते हो ना तो खरीद के बेचते हो, परचेज करते हो सेल करते हो, तो कोई डेप्रीसिएशन नहीं होता, क्योंकि आप रखते नहीं हो गुड्स को, रखते हो तो भी ज्यादा दिन नहीं रखते हो, तुरंत खरीदते हो फिर सेल करते हो। तो इसलिए देयर इज नो डेप्रीसिएशन, वी डोंट कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर स्टॉक। कभी देखा है क्लोजिंग स्टॉक में डेप्रीसिएशन, हम स्टॉक में कभी डेप्रीसिएशन नहीं निकालते। गुड्स में जो सेल किया उसमें डेप्रीसिएशन नहीं निकालते, जो यूज किया उसका डेप्रीसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ फर्नीचर एंड यू आर डूइंग, यू आर अ फर्नीचर मर्चेंट, मतलब आप क्या करते हो, फर्नीचर खरीद के फर्नीचर बेचते हो, तो वो फर्नीचर पे आप डेप्रिसिएशन नहीं निकालोगे। बट अगर आप फर्नीचर खरीदते हो यूज करने के लिए तो उसमें जरूर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे। तो यहाँ पे दैट इज द डिफरेंस। सो यहाँ पे डेप्रीसिएशन के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, डेप्रीसिएशन के बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री है, ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है। तो डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट दोनों ही नॉमिनल अकाउंट्स है, दोनों लॉस है। तो एक मिनट, इंटरेस्ट देखो डेबिट में है तो अब उसको कैंसिल करते वक्त क्रेडिट करेंगे। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट 779, तो इधर लिखेंगे 779। और इधर एक और चीज है,
डेप्रिसिएशन भी है 1411, तो वो भी राइट ऑफ करेंगे, उसको भी कैंसिल करेंगे। और हमारे अकाउंट्स में कुछ डेबिट में रहता है तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट एंट्री पास करते हैं। तो ये दोनों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। 779 और 1411 इज इक्वल टू 2190। तो इसको बोलेंगे बीइंग interest and depreciation transferred, being interest and depreciation transferred। इसके बाद वी कम टू द अदर बुक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्रेडिट साइड में है। तो ये क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए जो इंटरेस्ट क्रेडिट में था अब उसको कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट में लिखना पड़ेगा 779। और 2 ये किधर आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। तो 779 will come in the interest will come in the profit and loss credit side। तो इसको भी बोलेंगे being interest transferred। ये भी हो गया, अभी लास्ट ईयर का बाकी है। तो फिर से हम लोग परचेस और डाउन पेमेंट एक ही बार होता है, इंटरेस्ट से लेके ट्रांसफर तक का एंट्री हमें हर ईयर जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता पेमेंट तब तक करना है। तो इंटरेस्ट इज अ लॉस टू द बायर, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। किसको पे करना है, वेंडर को। तो ये एंट्री है इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट। और अमाउंट क्या है उसका, लास्ट अमाउंट देखो इंटरेस्ट का क्या है 428। तो यहाँ लिखेंगे 428 और यहाँ पे भी लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे भी लिखेंगे 428। इसको बोलेंगे being interest charged। इसके बाद वी विल गो टू द वेंडर बुक। वेंडर किसको कौन इंटरेस्ट पे करने वाला है, हु विल पे द इंटरेस्ट, शशि अकाउंट डेबिट 428। और यहाँ लिखेंगे 2, ये क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है बिकॉज इसको पैसा मिलेगा। तो इधर लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। इसके बाद इंस्टॉलमेंट का एंट्री, इंस्टॉलमेंट में किसको पैसा मिलेगा, वेंडर को मिलेगा। वेंडर अकाउंट डेबिट कितना मिलेगा 4500 ये हर बार। तो सेम लिखना पड़ेगा। 2 क्या बाहर जा रहे, यस नरेशन ऑल्सो सेम, बीइंग कैश बैंक, ओनली अमाउंट इज चेंजिंग। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट सिर्फ चेंज हो रहा है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी सेम है तो वो भी चेंज नहीं हो रहा है। बीइंग क्या है ये, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। इसके बारे में यहाँ पे क्या आएगा, वेंडर को, सेलर को इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 4200 टू हु इज पेइंग, शशि अकाउंट 4500। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, इसको बोलेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैन एनीवन टेल मी, आफ्टर इंटरेस्ट एंड, यस डेप्रीसिएशन, आफ्टर इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट इट इज डेप्रीसिएशन अकाउंट। सो डेप्रीसिएशन इज अ लॉस। तो डेप्रीसिएशन डेबिट में ही आता है बिकॉज हमेशा लॉस होता है। अब लेकिन अमाउंट क्या है डेप्रीसिएशन का देखते हैं, इट इज 1270। तो यहाँ पे लिखेंगे 1270। तो यहाँ 2 असेट लिखते हैं, पर असेट कौन सा है ये, रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर अकाउंट कितना वैल्यू कम हुआ फिर से 1270। तो इसको बोलेंगे बीइंग
बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, लेकिन वेंडर के बुक में तो नो एंट्री है, बिकॉज डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं आता वेंडर के बुक में। तो इसके बाद क्या एंट्री है, ये डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को कैंसल करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर एंट्री, वेरी गुड, टू इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट का अमाउंट है 428 और टू डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 1270। दोनों को ऐड करो, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन चार्ज, तो ये कितना होता है 428 प्लस 1270, इट इज 1698। तो ये भी हो गया। इधर क्या लिखेंगे, इधर सिर्फ इंटरेस्ट है, इधर क्रेडिट में 428, सो ये इंटरेस्ट को कैंसल करना है, तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट में लिखेंगे, कितना 428, और उसको 2 किधर आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। और ये डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आते हैं, इंटरेस्ट पेड और डेप्रिसिएशन हमेशा टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना पीएनएल अकाउंट फाइनल अकाउंट्स में, मतलब डेबिट में आते हैं इसलिए पीएनएल डेबिट में, और इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय इंटरेस्ट करके लिखते हैं, तो पीएनएल के क्रेडिट में आता है, तो पीएनएल क्रेडिट में है, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, being interest transferred. With this sum is done. Now let us do this sum. Cash price of an asset is rupees 56,000. कैश प्राइस कितना है 56, कैश प्राइस मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, and the higher purchase price of the same asset is rupees 60,000. higher purchase price मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, हायर परचेज प्राइस मतलब क्या, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, सो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज हाउ मच, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज 60,000, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज 60,000, पेबल रुपीज 15,000 एज डाउन पेमेंट, मतलब ये 60,000 में से 15,000 डाउन पेमेंट है, और बाकी का जो है वो 15,000 का 3 इंस्टॉलमेंट्स है। 15,000 का कितना इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट्स है। कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट एंड स्प्लिट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट, ये तो हमने कर लिया है। हमें अभी इसमें एडिशन क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज हमें करना है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे किस दोनों का नाम नहीं दिया, हायरर का भी नाम नहीं दिया एंड वेंडर का भी नाम नहीं दिया, तो हमें हायरर एंड वेंडर ही लिखना पड़ेगा बिकॉज नेम्स आर नॉट नोन। तो लेट अस कम हियर एंड जस्ट लेट अस डू दिस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ 2 people, hirer and vendor, तो मैं आई विल इंसर्ट द टेबल फर्स्ट सीरियल नंबर, क्योंकि डेट नहीं दिया, और दोनों के लिए एक एक कॉलम, तो व्हाट आई विल डू, डेट सीरियल नंबर के लिए छोटा कॉलम बस हो जाएगा, तो इधर सीरियल नंबर और इधर किसका नाम, हायरर का, और इधर किसका नाम, वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायरर, इन द बुक्स ऑफ वेंडर। तो सबसे पहला एंट्री कौन सा होता है, अब तुम लोग बताओ। सबसे पहला ये हायर परचेज का पूरा प्रोसीडिंग है कि कैसे स्टार्ट होता है, फ्रॉम विच एंट्री डज दिस एवरीथिंग स्टार्ट of hire purchase, it starts from exactly purchase and sale। तो सबसे पहले परचेस का एंट्री पास करते, क्या खरीदा,
असेट खरीदा, कौन सा असेट खरीदा क्वेश्चन में दिया नहीं है। असेट का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में दिया है 56,000, असेट का वैल्यू है 56,000। और इससे ये किससे खरीदा, वेंडर से खरीदा, किससे खरीदा, वेंडर से खरीदा। तो यहाँ पे लिखेंगे 56,000 वेंडर के नाम के आगे फिर बीइंग असेट परचेज्ड, being asset purchased on higher purchase basis, being asset purchased on higher purchase basis, इतना लिख लिया। और इसके बाद हम वेंडर के बुक में आए, वेंडर को, वेंडर ने किसको सेल किया, किसको सेल किया उसका नाम लिखो, किसको सेल किया, क्योंकि वेंडर के बुक में हायरर का नाम आता है, हायरर के बुक में वेंडर का नाम आता है, एज सिंपल एज दैट। कितने में सेल किया, 56,000 में। और सेल किया मतलब ये तो, ये वेंडर का जो सेलर का तो काम ही है सेल करना, तो जब भी सेल करता है तो क्या होता है, सेल्स होता है ना, सेल्स अकाउंट, सेल्स होता है। वेंडर के बुक में इट इज अ सेल्स, तो इसको क्या बोलेंगे, बीइंग। और वेंडर के लिए क्या है, गुड्स है, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस, हायर परचेज बेसिस। तो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, टेल मी। परचेस करने के सेम डे असेट घर में लेके जाने को नहीं मिलेगा अगर डाउन पेमेंट नहीं करेंगे। डाउन पेमेंट किसको करेंगे, वेंडर को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, कितने का डाउन पेमेंट है क्वेश्चन में, 15,000 का डाउन पेमेंट है। क्या होगा डाउन पेमेंट करेंगे तो व्हाट विल गो आउट, कैश बैंक अकाउंट, कैश विल गो आउट। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 बीइंग डाउन पेमेंट मेड, बीइंग डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट मेड, ये एक एंट्री हो गया। अब वेंडर को क्या मिलेगा जब डाउन पेमेंट होगा, तो वेंडर को क्या मिलेगा जब डाउन पेमेंट होगा, तो वेंडर को, सेलर को जब बायर पैसा देगा तो उसको पैसा मिलेगा। तो कितना पैसा मिलेगा, व्हाट इज द अमाउंट, इट इज 15,000 टू, टू किसको, हु इज गिविंग, हायरर, क्योंकि वेंडर के बुक में हायरर का नाम, हायरर के बुक में वेंडर का नाम। कितना है ये, 15,000, इसको बोलेंगे बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, इसको बोलेंगे बीइंग डाउन पेमेंट, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, ये भी हो गया। दिस वन इज ऑल्सो डन। नाउ थर्ड वन क्या है, कैन एनीवन टेल मी, व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री, एग्जैक्टली इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है वेन हायरर के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट है, 2,000। तो इसको बोलेंगे इंटरेस्ट टू, किसका नाम, किसको पे करना है, वेंडर अकाउंट, 2,000 बीइंग, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। और यहाँ पे कौन देगा, हु विल गिव, हायरर विल गिव। तो हायरर अकाउंट डेबिट 2,000, हायरर अकाउंट डेबिट 2,000 टू, टू क्या है ये, इंटरेस्ट अकाउंट है। कितने का इंटरेस्ट, 2,000 का। यहाँ पे भी सेम नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद क्या पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ना, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट किसको पे करेंगे, किसको पे करेंगे, वेंडर को। हायरर किसको पे करेगा इंस्टॉलमेंट, वेंडर को। कितना है क्वेश्चन में दिया है 15,000 का इंस्टॉलमेंट, सी ईयर इंस्टॉलमेंट 15,000 का है। टू सेलर बोलो या वेंडर बोलो एक ही बात है, क्योंकि वेंडर इज द सेलर। तो क्या बाहर जाएगा, कैश
बायर का क्या बाहर जाएगा, कैश। बट इन द लैंग्वेज ऑफ हायर परचेस हम बायर को हायरर बोलते हैं या हायर परचेसर बोलते हैं, और जो जिस सेलर को हायर वेंडर बोलते हैं, हायर वेंडर। तो इधर लिखेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। और यहाँ पे वेंडर के बुक में क्या मिलेगा वेंडर को, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिलेगा 15,000। कौन देने वाला है, हायरर देने वाला है, हायरर अकाउंट 15,000। हायरर को हायर परचेसर भी बोलते, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, ये भी हो गया। अब इसके बाद डेप्रीसिएशन एंट्री ना, पर डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बोला ना, डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो डेप्रीसिएशन का एंट्री पास ही नहीं कर सकते जब रेट कुछ भी नहीं दिया है। तो ट्रांसफर का एंट्री, नो एंट्री दिखाने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ट्रांसफर एंट्री करो। तो ट्रांसफर में इंटरेस्ट डेबिट में है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट को कैंसिल करना है, तो इंटरेस्ट क्रेडिट में चला जाएगा। और ये इंटरेस्ट किसके क्रेडिट, किधर डेबिट में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000 टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट 2000, इधर बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट में, बिकॉज इनकम है, इंटरेस्ट क्रेडिट में, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2000, ये कहाँ आएगा, ये आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इसको भी बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। 1 साल का हो गया। अब हम लोग सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो परचेस का एंट्री एक ही बार होता है, तो वो नहीं आएगा। फिर डाउन पेमेंट भी एक ही बार होता है, वो भी नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इस बार इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, देखो इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,333,2। किसको पे करना है इंटरेस्ट, वेंडर को। तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे 1,333, इसको बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। और यहाँ पे कौन पे करेगा इंटरेस्ट का अमाउंट, हायरर, हायरर पे करेगा। कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है 1,333। क्या है ये, इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ लिखेंगे 1,333 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। अब इंटरेस्ट करने के बाद 7th वन हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है। किसको पे करेंगे इंस्टॉलमेंट, वेंडर को। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, कितने का इंस्टॉलमेंट है 15,000 का, टू व्हाट विल गो आउट, कैश बैंक अकाउंट, दिस 15,000। इधर बोलेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। और वेंडर के बुक में क्या मिलेगा उसको, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू, कौन देने वाला है, हायरर अकाउंट 15,000 बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इसको बोलेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इसके बाद ये साल का लास्ट एंट्री कौन सा है, डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ नहीं दिया तो ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट कितना है
this 1333 to interest 1333 being interest ट्रांसफर्ड, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। और यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट में था, अब कैंसल करना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1333 टू किधर जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट साइड, बिकॉज इट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। इसके बाद हम लोग का खत्म नहीं हुआ, इसके बाद फिर से हमें वही एक लास्ट ईयर के लिए फिर से हमें वही सब करना। अभी हम लोग ना इसमें नरेशन नहीं लिखेंगे, बिकॉज आई अज्यूम तुम लोग को नरेशन भी अभी याद हो गया होगा क्या करना है। तो ये ईयर में हम लोग क्या करेंगे, और तुम लोग को एग्जाम में फुल सम नहीं आने वाला है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इन परचेज सेल और डाउन पेमेंट, वो तो सिर्फ एक ही बार आता है, तो क्या रिपीट करना है हमें, इंटरेस्ट हायरर के लिए एक्सपेंस है, तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किया। लास्ट वाला इंटरेस्ट कितना, 667, लास्ट वाला इंटरेस्ट है 667, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 667 टू किसका नाम, वेंडर का नाम 667, इसको बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, इसको बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। और वेंडर के बुक में कौन इंटरेस्ट पे करने वाला है, हायरर अकाउंट डेबिट 667 टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट वही है 667, इसको नरेशन बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब इसके बाद एंट्री क्या है, इसके बाद एंट्री किसका है, इसके बाद एंट्री किसका है बताओ, इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट है ना, तो इंस्टॉलमेंट किसको पे करना है, वेंडर अकाउंट, वेंडर को पे करना है ना इंस्टॉलमेंट, कितना पे करना है 15,000 टू, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो क्या बाहर जाता है, कैश बैंक अकाउंट, दिस इज 15,000, इसको बोले, इसका नरेशन क्या है, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड ना, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। और वेंडर के बुक में क्या आएगा, उस वेंडर को क्या मिलेगा, जब हायरर पे करेगा तो वेंडर को कैश मिलेगा, टू किसने पे किया उसका नाम लिखेंगे, हायरर अकाउंट 15,000, ये हो गया इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अब इसके बाद लास्ट एंट्री है, ये जो इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन तो नहीं है, तो ये जो इंटरेस्ट है इसको कैंसल करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 667, एग्जैक्टली ट्रांसफर एंट्री टू इंटरेस्ट अकाउंट 667, और यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट में था बिकॉज इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 667 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 667 being interest transferred, being interest transferred. With this sum is also done. So now we will do this sum and only calculation of interest we will do. So on 1/1/2010, that is 1st January 2010, M has purchased a machinery. Now who is M? हायर परचेसर और वेंडर, जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, हु परचेसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, हायरर बोलते हैं, करेक्ट। तो एम हायरर है, हायर परचेसर है, एम ने मशीनरी खरीदा ए से, तो ए कौन है, हु इज ए, A is the vendor, higher vendor, तो and paid rupees 8,000 at the time of delivery। तो ये 8,000 क्या है, what is this 8,000 जो डिलीवरी करते वक्त पे किया है एम ने ए को,
This is down payment, correct? This is down payment. The cash price was rupees 48,000, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जिसमें depreciation निकालेंगे वो 48,000 है. तो बोलते हैं the balance amount was paid in the following 4 installments on 31st December every year with interest at 5%. तो यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट भी दिया है 5%. तो 5% इंटरेस्ट निकालना है. हमेशा इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पे निकालते. तो पहला इंस्टॉलमेंट दिया है 12,000 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,000 है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 11,500 है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 11,000 है और लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट 10,500 है. लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है 10,500. डेट भी दिया है, कभी कभी पे किया है 12,000 31/12/2010, 11,500 दिसंबर 2011, 11,000 दिसंबर 2012 और 10,500 दिसंबर 2013 को दिया है. और मशीनरी डिप्रिशिएट हुआ है 10% ऑन सेकेंड मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. मतलब इसमें हर बार डिप्रिसिएशन अलग अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, सेम अमाउंट पे नहीं. तो हमारा ठीक है, इसके साथ हमारा सम तो हमें समझ में आ गया. अब क्या करना है हमें? कैलकुलेशन. लेट अस सी व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट and depreciation. Calculation of interest and depreciation. तो we will insert पहला कॉलम डेट के लिए, दूसरा कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, बैलेंस कैश प्राइस एंड डेप्रीसिएशन. तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला हम लोग डेट के लिए बनाते, फिर कैश प्राइस के लिए, फिर जिसने भी इंटरेस्ट मिस किया है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो लेक्चर मिस किया है तो अभी ध्यान से देखो. डेट है, कैश प्राइस है, इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट है, फिर क्या है इंस्टॉलमेंट के बाद? बैलेंस कैश प्राइस, फिर लास्ट वन इज डेप्रीसिएशन, बिकॉज डेप्रीसिएशन भी पूछा है ये क्वेश्चन में. तो सबसे पहला डेट कभी परचेज किया? 1/1/2010. 1/1/2010 को हमने मशीनरी खरीदा. तो कितना पैसा दिया? हाउ मच वाज द डाउन पेमेंट? कैन एनीवन टेल मी अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट कितना है? 8,000. डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहता. तो पूरा हमारा कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इंस्टॉलमेंट. तो 8,000 प्लस नील, बिकॉज इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं है, तो इट बिकम्स 8,000. इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो हमारा इंस्टॉलमेंट है 8,000. अभी कोई बताएगा बैलेंस कैश प्राइस कितना है? कैन एनीवन टेल मी बैलेंस कैश प्राइस कितना है? एग्जैक्टली करेक्ट, 40,000. कैसे मिला? 48,000 was the कैश प्राइस, जिसमें हमने 8,000 पे कर लिया, तो हमारा बैलेंस कैश प्राइस होता है 40,000. तो यहाँ पे ना डेप्रीसिएशन पहले दिन तो कैलकुलेट नहीं होता, जिस दिन खरीदा उसी दिन डेप्रीसिएशन नहीं होता. हम नॉर्मली ईयर एंड में डेप्रीसिएशन निकालते हैं. यस. तो यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट कभी दिया? देखो डेट दिया है 31/12/2010. 31/12/2010 को कितना इंस्टॉलमेंट है? क्वेश्चन में दिया है 12,000. इंस्टॉलमेंट है 12,000. तो ये 12,000 डेट क्या है? 31/12/2010. इसमें हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस कैश प्राइस पे निकालते हैं. 5% 5% लिखना है या डिवाइड बाय 100 लिखना है, एक ही बात है. इंटू 1 कितना होता है? 40,000 इंटू 5% इंटू 1 इज हाउ मच? 2,000 मिल रहा है. इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त 2,000 मिल रहा है सबको. तो 2,000. अगर इंस्टॉलमेंट में 12,000 में इंटरेस्ट 2,000 है, तो कैश प्राइस कितना रहेगा? 12,000 में अगर इंटरेस्ट 2,000 है, तो कैश प्राइस कितना रहेगा? 10 + 2 = 12, करेक्ट.
10 प्लस 2 इज 12, मतलब इंस्टॉलमेंट में अगर 2000 इंटरेस्ट है तो कैश प्राइस कितना रहेगा 10,000। सो बैलेंस कैश प्राइस कितना है 40,000 बचा था और 10,000 पे कर दिया, तो अभी बैलेंस कितना है 40,000 माइनस 10,000, 40,000 माइनस 10,000 विच इज इक्वल टू 30,000। अब एक और चीज निकालना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन पहला साल तो जितना कॉस्ट है उसी पे निकालेंगे ना, और 10% है तो 10/100 इंटू पूरा 1 ईयर, जैन से दिसंबर कितना होता है 4,800, यहाँ लिखेंगे 4,800। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दिया है देखो 31 दिसंबर। नेक्स्ट देखो कौन सा डेट है 31 दिसंबर 2011, और इंस्टॉलमेंट बोला है 11,500। तो ये 11,500 में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो डेट लिखो 31/12/2011 में इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस कैश प्राइस पे निकालते हैं, तो बैलेंस कैश प्राइस कितना है 30,000, तो 30,000 पे निकालेंगे कितना परसेंट 5% बोला है, 5% है इंटरेस्ट का into 1, कितना आ रहा है, हाउ मच आर यू गेटिंग 1,000 आ रहे हैं, 1,500 आ रहे हैं, 1,000 आ रहे हैं, 1,500। जरा देखो 30,000 का 5% निकालो, कितना आ रहे देखो 1,500 आ रहे, तो कितना है इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितना है 11,500 माइनस 1,500 इट इज 10,000। कितना बचा 30,000 में 10,000 गया, तो अभी भी कितना बाकी है 20,000। मैं फिर से लिख रही नहीं हूँ 20,000 कैसे आया, बताओ कैसे आया 20,000। 30,000 जो बैलेंस था उसमें आज जो हमने पे किया 10,000, तो हमें 20,000 आया। तो एक और चीज हमें यहाँ पे निकालना है, दैट इज डिप्रिसिएशन। रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या करते हैं 48,000 में से माइनस करना पड़ेगा 4,800, और जो बचा हुआ अमाउंट है 48,000 माइनस 4,800, बचा हुआ अमाउंट है 43,200 बराबर आ रहा है, उस पे 10% निकालना है, उस पे 10% निकालना है फॉर 1 ईयर। कितना होता है 4320 बराबर 4320। अब इसके बाद फिर से दिया हुआ है, 2012 में कितना है 2012 में 11,000 है। हाउ मच इज द इंस्टॉलमेंट गिवन देखो 2012 का 11,000, तो फिर से वी हैव टू गो एंड फाइंड आउट इंटरेस्ट। सो 31/12/2012 में हमें क्या करना है इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो बैलेंस कैश प्राइस कितना है देखो, बैलेंस कैश प्राइस कितना है, बैलेंस कैश प्राइस कितना है, बैलेंस कैश प्राइस है 20,000। सो 20,000 पे कितना परसेंट 5% फॉर हाउ मच 1 ईयर, फॉर 1 ईयर विच इज इक्वल टू हाउ मच इज इट कमिंग 1,000, आंसर आया 1,000। तो 1,000 अगर इंटरेस्ट है तो हमारा इंस्टॉल कैश प्राइस कितना है इंस्टॉलमेंट में 10,000। तो अभी कितना बचा, अभी कितना बचा 20,000 में 10,000 पे कर दिया तो 10,000 बचा। इधर अगेन आई एम शोइंग 20,000 था 10,000 आज पे कर दिया, तो 10,000 बचा है। अभी एक और चीज हमें निकालना है, दैट इज डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे 43,200 माइनस 4320 कितना आ रहा है 43,200
-4320 which is equal to 38,880. इसका 10% निकालो, 10% into 1 which is equal to 3888. कितना आया? 3,888. अब इसके बाद भी खत्म नहीं हुआ. 31/12/2013 को कितना दिया है? सी लास्ट वाला है इंस्टॉलमेंट है 10,500 मिला. लास्ट इंस्टॉलमेंट 2013 को हमने कितना पे किया? 10,500. पर यहाँ पे ना हमें कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है. बैलेंस कैश प्राइस कितना बचा है? 10,000. और हमने कितना पे किया? 10,500. तो ये जो 500 एक्स्ट्रा दिया, इट इज द इंटरेस्ट. हमारा लास्ट में बचा है सिर्फ 10,000, पर हमने इंस्टॉलमेंट कितना पे किया? 10,500. तो जो एक्स्ट्रा दिया, इट इज द इंटरेस्ट. लेकिन लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. तो 31/12/2013 को हम लोग को डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. सो 38,880 माइनस 3,888 कितना होता है? देखो 30 कितना होता है? 3,888. हमें कितना आंसर आता है? 34,992 इंटू 10% इंटू 1 करो. कितना आंसर आ रहा है? इसका 10% निकालो. कितना आ रहा है? 3499.2. मतलब सेम रखेंगे 3499. मतलब लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी मिल गया 3499.2 या 3499 सिर्फ लिखेंगे तो बस हो गया. तो विद दिस सम इज ऑल्सो डन. with this sum is done.